आप यूज कर रहे हो, एट योर स्क्रीन आपको ये चीज दिख रही है, राइट? यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो देयरफॉर what is one quality that makes a person a good friend? Now what are the steps to be followed? आप किन steps को follow कर सकते हो? सबसे पहले you need to mention an important quality. कोई भी एक important quality आपको mention करनी है. मैंने उसके भी hints दिए हैं आपको. Maybe honesty हो सकता है, kindness हो सकता है, loyalty हो सकता है. Once you pick up what quality you want to speak about, उसके बाद आपको क्या बताना है? Why it is important. अगर एक अच्छे फ्रेंड में ये क्वालिटी होनी चाहिए तो ये क्यों होनी चाहिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. लास्टली आप अपने बेस्ट फ्रेंड की या गुड फ्रेंड ऑफ यू उसकी एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो, राइट? सो नाउ वॉलंटियर्स, इधर आई विल टेक रैंडम नेम्स और वॉलंटियर्स. आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो. यू कैन टेल मी, आई विल अलाउ यू टू स्पीक एंड पैरेलली आई विल बी टेकिंग नोट्स जिसने जो जो बोला और कैसे उस चीज़ को बेटर करना है. सो हु वांट्स टू स्पीक फर्स्ट? First of all, I would like to say good evening, ma'am, and good evening, everybody. So today's topic is what is the best quality of a good friend, right? So first of all, I would like to say what is a friend. Friend, we have a lot of friends. So among of them, one is a good friend, right? So we choose that person who has also. First of all, our vibes should be matched. We're thinking in the same way, and that person who would like to make a good friend, he should be loyal, he should be honest, and he should be disciplinary. And so if I'm talking about why we need a friend, so sometimes suppose we are getting frustrated, so we are so overwhelmed, so we need some suggestion. So we cannot talk with our family or any kind of relative. So at that moment we just need some knowledge, or we just need some salam mashura, right? So from our friends, okay? So yeah, in that situation I can say we should have to make a good friend in your life. So if I'm talking about a good example of Krishna Sudama, Jay, so in Sole, Jay and Viru, right? Yeah, it's all about those stories. At last I would like to conclude that. At last I would like to conclude that the example of Krishna and Sudama in Sole, Jay and Viru, that kind of friendship are worth. Yeah. That kinds of friendship are worth, right? Yeah. Good. Okay. So yes, this was a good answer. Now, first of all, the work on the pauses, which we discussed in the previous session, that you need to work on the pauses. It was slight better, but थोड़ा सा आपको pauses के ऊपर और थोड़ा focus करना है. कहाँ पे there is comma वाला pause, I think she's not, which means a short pause, all right. और कहाँ पे it's a full stop वाला pause जहाँ मुझे ज़्यादा halt लेना है, right? Usage of so. हम unknowingly we don't हम ये चीज़ judge नहीं कर पाते हैं, but still एक word को अगर आप so कोई भी ऐसा word है उसको आप repeatedly बोलोगे, so this is going to be overheard. दूसरा एक वर्ड आपने यूज किया था, दिस वन, दिस इज द वर्ड. इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज सजेशन. सुजेस्ट से ये वर्ड बना है, सलाह देना या फिर किसी से सजेशन लेना. इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वी प्रोनाउंस इट एज सजेशन, ओके. उसके बाद आपने सलाह वर्ड एक यूज किया था, उसमें आप क्या बोल सकते हो? It is always worth taking an opinion from a true friend. Opinion कि उसकी इसमें क्या राय है, right? And if I am talking about examples, if I am talking नहीं, if I talk about, अगर मैं बात करूँ अच्छी friendship की examples की, right? So it's better to say if I talk about the examples from our ancient Puranas or ancient books, Krishna and Sudama demonstrate the meaning of true friendship. आप इस तरह से बोल सकते हो. एंड जहाँ पर अब देखो मैंने ये लाइन आपके सामने बोली है, कहाँ पे मुझे स्ट्रेस करना है, कहाँ पे मुझे पॉज करना है, कहाँ पे आई नीड टू न्यूट्रल माई टोन. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम किसी भी तरह का आंसर करते हैं, ओके. नाउ लेट अस सपोज ये तो इट वाज एक लॉन्ग आंसर था, इसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स को डिस्कस भी किया. इट वाज अ गुड ट्राई, गुड अप्रोच. लेकिन अगर आपको एक सिंपल इंग्लिश का आंसर देना है इस क्वेश्चन का, दैट व्हाट इज वन क्वालिटी दैट मेक्स अ पर्सन अ गुड फ्रेंड.
सबसे पहले मुझे क्या बताना है, क्वालिटी को पिक करना है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और एक एग्जाम्पल शेयर करनी है. लेट्स सपोज नाउ इफ आई हैव टू से, सबसे पहले एक अच्छी सी ओपनिंग लाइन होनी चाहिए. ओपनिंग लाइन फ्रेंड्स के मीनिंग पे भी हो सकती है. जैसे अभी हमने आंसर सुना, व्हाट इज अ फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दिस कैन बी देयर. या फिर क्वालिटी के साथ आप अपने आंसर की ओपनिंग कर सकते हो. कैसे, अ गुड फ्रेंड शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, राइट. सो मैंने लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट मैंने आपको हिंट दिया है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, मैंने इसी को पिक कर लिया और उसी से मैंने अपना आंसर स्टार्ट कर दिया. अ गुड फ्रेंड शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट. मैंने एक अपने आंसर की ओपनिंग भी दे दी, एज वेल एज मैंने क्वालिटी को भी मेंशन कर दिया, राइट. सो मैंने क्या क्वालिटी एक फ्रेंड में होनी चाहिए वो भी चीज़ को मेंशन कर दिया, राइट. अब मुझे बताना है कि जो क्वालिटी मैंने पिक की, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, what is the need of that, right? How I am going to say कि let's suppose अगर honesty है, it basically makes the relationship of friendship strong if honesty is there. Let's suppose मेरा ये व्यू पॉइंट है, मुझे ये बताना है, ये हो गया. उसके बाद I need to share an example in which I can share that I have a very good friend of mine who is very loyal and very honest to me, right? Which I appreciate the most and this is the strongest part of our connection. कुछ भी बोल सकते हो. अ गुड फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट. अकॉर्डिंग टू मी, ऑनेस्टी हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप. Talking about a good friend of mine, I have a friend who always tells me the truth even when it is difficult to tell. So that is the thing I really appreciate about my friend. That's it. Whenever you talk about something, try to use the connecting words. Well, I want to say that. वेल के बाद मैंने कॉमा लगाया. अब लेट्स सपोज मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ, वेल कॉमा आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, राइट. अब वेल के बाद कॉमा है. अगर मैं देखो ऐसे बोलूँगी, वेल आई वॉन्ट टू से दैट, मैंने कोई पॉज नहीं किया. इफ आई से वेल आई वॉन्ट टू से दैट, तो वेल को मैंने थोड़ा स्ट्रेस किया, स्लाइड सा पॉज किया, देन मैंने अपनी लाइन कंटिन्यू की. सुनने वाले को ऑटोमेटिकली एट द बैक ऑफ द माइंड वी गेट दिस थिंग कि समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक जो पूछा गया, ऐसी चीज होने वाली. दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस एज एंड योर टोन. ये है बेस उसका. सी फॉर क्लैरिटी, सी फॉर करेक्ट, ये होना चाहिए. दूसरा क्या कॉम्बिनेशन होता है, योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हमारा एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है, दिस वी आर गोइंग टू कवर इन सम टाइम. बॉडी लैंग्वेज along with your gestures, your facial expressions, your टोन आई वुड रिकमेंड, टोन एंड पिच. किस तरह की मैं टोन कब यूज कर रही हूँ. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, तो थोड़ी क्वेश्चनिंग वाली टोन होनी चाहिए. अगर मुझे कहना है कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सी बहुत पे मैंने स्ट्रेस किया, ऑटोमेटिकली सुनने वाले को पता चला दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीज़ें होती है जो एज अ स्पीकर, अगर आप इंग्लिश स्पीकर हो भी या नहीं भी हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट. एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू ट्राई? यस अभय. Yes, ma'am. So, according to me, honesty is important because of. I'll try, ma'am. No problem, no problem. Try. According to me, honesty is a loyal friend stand by my side. Both good and bad situations depending good and bad situation. According to me, honesty is a best things because that such many situations are. मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं डायरेक्ट. हाँ, राइट, कम टू एग्जांपल. For example, 12th film movie, Manoj Kumar Sharma and Pritam Pandey. He is supporting and motivating person. Manoj Sharma. Yes. Manoj Sharma facing the problem. Pritam Pandey helps in money and traveling expenses and many things. Because Pandey नहीं होता तो मतलब Pandey has not problem आ रहा है थोड़ा सा. No problem. Keep on trying. Pandey has not standing by the. He could not achieve his dream. He could not achieve. Right. अब ओके, आई अलाउ रानी हरमिंदर, आप भी बोलोगे अभय किन चीज़ों का ध्यान रखना है.
दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू बट आई थिंक सबके लिए होगा. यहाँ पे हम ऑनेस्टी बोलते हैं, हॉनेस्टी नहीं बोलते. कभी भी ये जो साउंड है, दिस विल नॉट बी अ ह साउंड. ये किसका साउंड होता है? ऑ साउंड. तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ऑनेस्टी. ओके. दूसरी चीज़, प्रोनाउंसिएशन ऑफ बिकॉज. हमें बिकॉज नहीं बोलना, दिस इज बिकॉज. राइट, ये चीज़ का ध्यान देना है. गुड एंड बैड सिचुएशंस वाली एक लाइन थी, नाउ आई फॉरगॉट कि उसमें क्या चीज़ था. नेक्स्ट करते हैं. ऑनेस्टी इज बेस्ट थिंग्स. नो, आप बोलो सबसे पहले ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी. ईमानदारी एक चीज़ होती है, सो हम उसको थिंग्स नहीं बोलेंगे. ऑनेस्टी क्या है? क्या ऑनेस्टी को आप देख सकते हो? अगर मैं बोलूँ लेट्स सपोज आई एम सिटिंग हियर, शो मी व्हाट इज ऑनेस्टी, तो आपके बिहेवियर से पता चल सकता है. कोई ऐसा फिजिकल चीज़ तो नहीं है ऑनेस्टी, तो वो थिंग नहीं है. तो आप क्या बोलोगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी. थिंग नहीं बोलना हमने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी. राइट. 12th फेल एग्जाम्पल, वंडरफुल एग्जाम्पल. राइट. सो जब आपने एग्जाम्पल देनी है, इफ आई शेयर अ गुड एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा 3rd पॉइंट, शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ गुड फ्रेंड. इसी लाइन को पिक करके, स्क्रीन की तरफ आप देख के बोल रहे थे अभी, तो इसी लाइन को पिक करके आप बोलो, इफ आई शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ गुड फ्रेंड, 12th पास मूवी इज द बेस्ट एग्जाम्पल. अब देखो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कैसे करना है. राइट. तो 12th पास वैसे ही इट्स अ वंडरफुल मूवी. देयर वर 2 फ्रेंड्स इन द मूवी. अब एक चीज़ अच्छा यहाँ पे मैं आपको और बताती हूँ. इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली पर्टिकुलरली फॉर अभय, ये सब स्टूडेंट्स के लिए है. जब भी आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सिर्फ फैक्ट्स ये करोगे, थ्योरी इंक्लूड करोगे, कभी भी लिसनर का आप में इंटरेस्ट नहीं होगा. whenever you are answering something, अगर उसमें स्टोरी होगी, अगर आई एम नॉट सेइंग कि लेंथी स्टोरीज बोलनी है, नो, अगर कोई शॉर्ट स्टोरी होगी, शॉर्ट इंसिडेंट होगा, ऑलवेज अटेंशन, ऑलवेज लिसनर की जो अटेंशन होगी वो उसको ग्रैब करेगा, लिसनर का इंटरेस्ट बनेगा आप क्या कहना चाह रहे हो. दिस पॉइंट केम इन माई माइंड फ्रॉम 12th फेल मूवी. सो इफ आई टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ गुड फ्रेंड, 12th फेल मूवी इज द बेस्ट एग्जाम्पल. इन दिस मूवी देयर वर 2 फ्रेंड्स. अब देखो यहाँ से क्या है, मैंने स्टोरी को नरेट करना शुरू किया. हम सबको स्टोरी सुननी अच्छी लगती है, ईदर बी द कॉन्शियस माइंड और द सबकॉन्शियस माइंड. स्टोरीज से हम ज़्यादा हमेशा कनेक्ट करते हैं. सो इन द मूवी देयर वर 2 फ्रेंड्स. अब ये स्टोरी की नरेशन जब आप इस टोन में करोगे, चाहे सिंपल इंग्लिश यूज़ करो, अबे यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन ग्रामर ऑल्सो. जितनी प्रैक्टिस आप अभी कर रहे हो, आपका जितना ड्यूरेशन है आगे कोर्स का, आप उसको डबल कर दो. ओके, पर्सनल सजेशन फॉर यू. सो देयर वर 2 फ्रेंड्स, मनोज शर्मा एंड प्रीतम पांडे. सो मनोज हैड अ ड्रीम टू बिकम एन IAS ऑफिसर. 2 फ्रेंड्स थे, एक का ये सपना था, वो बनना चाहता था, बट इट वॉज ड्यू टू प्रीतम पांडे दैट हिज फ्रेंड वॉज एबल टू अचीव हिज ड्रीम. मैंने कहानी भी सारी बता दी, ये बनना चाहता था, ये उसी की वजह से वो चीज़ बन पाए. He helped him in every way. So according to me, this is best example of a good friend. अबे, are you clear now? किस तरह से आप अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हो, इस तरह से करो, प्रॉपर पॉजेज लो, और जब भी बोल रहे हो, एक चीज़ मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, स्पीकिंग में बहुत हेल्प करता है. यू नो, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ 13 years, आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग. जब भी आप कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, आपका जो ब्रेन होता है ऑलवेज 4-5 सेकेंड अहेड चलता है. इफ़ आई एम टीचिंग यू, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, उस कॉन्सेप्ट में एट व्हाट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग, जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, माई ब्रेन इज़ 5 seconds अहेड. आगे क्या है वो ब्रेन में मेरे चल रहा है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. ये एकदम ओवरनाइट नहीं होगा और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस. जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप बोलोगे, जितना फेयरलेसली बोलोगे, आई वुड से, फियर जिस दिन आपके अंदर से खत्म हो गया, इंग्लिश वुड बिकम वेरी इजी. ओके, सो इस तरह से यू कैन गिव अ पॉसिबल आंसर. Definitely, good quality of friends can create cement bonding between them, but it also build a good character in front of the other persons also. If I talk about my perception, loyalty should be mandatory while making friends, because in this modern era, every relationship is based on the loyalty.
If we are loyal for the person, definitely we can build the strength of our relationship. Moreover, I can say that our relationship can go for a long time. Apart from this, we can preserve our secrets with this. To be honest, I have some true friends in my life who are loyal for me in any situation. For example, if I talk about my college and school friends, so I can say that I'm the best and luckiest person in my life. I have good friends. So at last I can say that loyalty is the top of the quality while making friends. So I think it should be mandatory. There is no doubt loyalty is mandatory, but we can't ignore the other qualities like kindness, honesty, and so many. तो अब इसमें कुछ चीज़ों की आपको अमेंडमेंट करनी है, बेटर करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अदर पर्सन्स नहीं होगा, अदर पर्सन. आप जब ये लाइन बोल रहे थे, आप एक फ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, फ्रेंड की परिभाषा के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे. सो इट वुड बी अदर पर्सन. ओके. उसके बाद लॉयल्टी शुड बी मैंडेटरी. लॉयल्टी मैंडेटरी होनी चाहिए. मीन्स आप ये कह रहे हो कि ये एक फ्रेंडशिप में मस्ट चीज है, तो आप क्या बोलोगे? लॉयल्टी मस्ट बी मैंडेटरी. ओके. Then only relation can go for long time. No, then only relation can survive for lifetime. This would be a better word. Then only the relation can survive. कि वो lifetime तक, मतलब कहते हैं ना, जिंदगी भर के लिए ऐसी फ्रेंडशिप चल सकती है. उसके बाद लॉयल फॉर मी इन एनी सिचुएशन नहीं होगा. जब आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में बता रहे थे, लॉयल फॉर मी इन एवरी सिचुएशन. In every situation. Okay. Loyalty is the top of quality. No. इसको आप कैसे, आप ये कहना चाहते हो लॉयल्टी जो है सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटी है, राइट? तो आप क्या बोलोगे? लॉयल्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके. क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि बाकी क्वालिटीज भी इम्पोर्टेंट हैं, बट आपके नजरिए में लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट. यूज द सिंपल वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर कंक्लूड होना चाहिए था, क्योंकि इसी तरह फ्लो चल रहा था आपके आंसर का. लेकिन इसके बाद आपने स्टार्ट किया बोलना कि और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं. ये यहाँ पे मत बोलो. आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कि एक गुड फ्रेंडशिप में या एक गुड फ्रेंड में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लाइक सो एंड सो, बट अकॉर्डिंग टू मी लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट है. इस तरह से ये बेटर लगेगा. लेकिन जहाँ हमें सुनने वालों को लग रहा था कि अब आंसर खत्म होने की तरफ आ रहा है, तो उसमें कुछ ऐड ऑन मत. रानी, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. यस. Good evening, ma'am. So, according to me, a good friend is someone who is supportive and kind. A good friend should have qualities that make the friendship strong and meaningful. And first quality should be trust. A good friend should have trust. It means a good friend is someone you rely on and trust with your thoughts and feelings. Secondly, honesty. They tell the truth even it's difficult. And after that, good friends should have loyalty. In this case, they stand by you in good and bad times. They understand your feelings and support your feelings. They should respect your opinion and choices also. They bring joy, encouragement and motivation to your life. And as far as my knowledge is considered, the best example for a good friend is Three Idiots. In this movie, Amir Khan always support his friends and he always motivate his friend. That's it, ma'am. Thank you. ऑल राइट, वंडरफुल आंसर. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको बेटर करना है. लेट मी जस्ट कम टू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक वर्ड यूज किया था रिलाई, जिसको कहते हैं भरोसा, राइट? सो रिलाई की प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रिली या समथिंग ऐसे कुछ बोला आपने, बट व्हाट आई कुड टेक फ्रॉम द प्रोनाउंसिएशन, आपको वर्ड क्या बोलना है? रिलाई. रिलाई का मतलब जिस पे भरोसा किया जा सकता है. वाले ये फिलर्स थोड़े से कम करने हैं. और आपने मल्टीपल ओपिनियंस दिए, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया. दैट वाज वंडरफुल. लेकिन एक चीज़ आप इसमें और ऐड करो, यूज़ कनेक्टिव्स. फर्स्टली आई वांट टू से दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, देयरफॉर, हेंस,
मोर ओवर ऐसे वर्ड्स को यूज करो। एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न, एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न मत बोलो, एज पर माई नॉलेज, या फिर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आप ये भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन 3 Idiots मूवी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। इसमें आपने ये चीज़ बोली है कि आमिर खान है, ही ऑलवेज मोटिवेट हिज फ्रेंड्स, ही ऑलवेज मोटिवेटेड हिज फ्रेंड्स, क्योंकि ये पास्ट का इंसिडेंट है, वो अभी मोटिवेट नहीं कर रहा, मूवी में मोटिवेट कर रहा था। ओके, रेस्ट ऑल वाज फाइन। ओके, यस हरमिंदर। Hello, good evening, madam. गुड इवनिंग। Yes, ma'am. Today topic is very good one. What is the one quality that makes a person a good friend? I always want, ma'am, that only one quality is a more big in everyone's life. If we have a friend, that is a honesty. If we have a honest friend, then I think we can share everything, our personal experience, our secret things. But he must be a true blue friend. Because a honest friend never talk your secrets to anyone, and sometimes when we are in a tough situation, we can share our pain also. Because I really remember the one good example of a good friend is the Lord Krishna and Sudama. No doubt that Lord Krishna ji that time was a king of a Dwarka Nagari, but when his friend came to meet him, for he had forgotten everything and to rushly meet him. So that's a very good example, and I think if we have such type of friend in our life, then it's a really a pillar of strength and also supportive for us. So really a moral is I always remember the moral of friend indeed is a friend indeed. राइट, Thanks. वेरी गुड, वेरी नाइस ट्राई। ओके, अब इसमें किन चीज़ों का आपको हरमिंदर ध्यान रखना है? सबसे पहले ऑनेस्टी की प्रोनाउंसिएशन, अ से बोलना है साउंड, ऑनेस्टी, राइट। उसके बाद नेवर टॉक योर सीक्रेट्स, नो, नेवर रिवील योर सीक्रेट्स या नेवर डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स। ओके, उसके बाद कृष्ण एंड सुदामा की एग्जाम्पल में यू टोल्ड दैट कृष्णा वॉज इन द्वारका नगरी, डोंट यूज द वर्ड नगरी, सिंपल से द्वारका, दैट्स इट। द्वारका से ऑलरेडी लिसनर को पता है प्लेस का नाम लिया गया। He rushly meet him नहीं, he rushed to meet him। हुआ क्या था जब सुदामा came there? So Lord Krishna, when he got the news that Sudama, his very dear friend, has come to meet him, so he just rushed towards his friend, right? So यहाँ पे rushed आएगा। And एक और चीज़ भी हो सकती है, जैसे आपको टॉपिक को एंड करना है, so it's always a blessing to have a friend with this quality, ये भी बोल सकते हो। एंड ओवरऑल दैट वॉज फाइन, बट द थिंग इज थोड़ी सी फंबलनेस पे आपको वर्क करना है। वो फंबलनेस इसलिए है बिकॉज अभी क्या है, राइट नाउ यू आर स्पीकिंग ऑन द स्पॉट। आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हाफ एन आवर टू 1 hour का टाइम मिला है, यू आर प्रिपेयरिंग द टॉपिक और सो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अ गुड ट्राई। आई वुड से इट्स अ इम्प्रूव्ड ट्राई इन टुडेज सेशन। ओके, ऑलराइट। विज्ञान इज सेइंग आई फेस लॉट ऑफ हर्डल्स टू यूज कनेक्टिंग्स एंड कंजंक्शंस। Vigyan, connecting words and conjunctions and or because conjunctions connecting words firstly, secondly, इसकी सिर्फ एक ही की है। I tell you, when you were speaking on today's topic, I think आपने different aspects, कृष्णा सुदामा की एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ली थी, और उसके बाद you talked about the meaning, true meaning क्या होता है, friend क्या होता है। अब करना क्या है आपको स्ट्रक्चर सबको याद होगा। आई थिंक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड आंसर, वो जब स्ट्रक्चर है आपने क्या करना है, व्हेन यू आर आंसरिंग, मैंने ये बोला भी था आपको, जब आप आंसर कर रहे हो, टेक अ नोटबुक पेपर विद यू। आई एम ऑल्सो यूजिंग इट। जब आप सब आंसर कर रहे हो तो आप में से क्या क्या चीज़ें करेक्ट करने वाली हैं, आई एम नोटिंग दैट। लेकिन आंसर करने से पहले जस्ट 1 minute ऑफ टाइम में, लेट सपोज आप ही के आंसर पे आते हैं, मीनिंग ऑफ फ्रेंड, honesty or kindness, we can disclose, we can share secrets in the time, in difficult times he or she is there. So difficult times, honesty, kindness, example Krishna Sudama. Now I need to look at those words, मुझे उन words को देखना है। वो words basically क्या हैं, वो मेरे 5 pointers हैं कि first I have to speak on this, then this, then this, moreover, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, देयरफॉर, हेंस, ऐसे वर्ड्स हैं। जब आप उन 5 पॉइंटर्स के बीच में स्विच कर रहे हो 1 by 1, यू आर स्पीकिंग अबाउट 1, देन गोइंग टू 2, देन 3, देन 4, देन 5, ये स्विचिंग के बीच में
start to consciously use these words. जब आप इनको consciously use करोगे, this will become a habit to use. I think now this concept is clear to all the students. I face lack of confidence and if present topic, so I forgot. अब है दो चीज़ें. सबसे पहले कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस आपको कोई भी नहीं सिखा सकता. दिस इज माई ओपिनियन. देविका, कमिंग टू यू. कॉन्फिडेंस नोबडी कैन टीच यू. कॉन्फिडेंस जो होता है, दिस इज बेसिकली व्हाट आई कैन से इज दिस इज अ वन स्टेप दैट अ पर्सन टेक्स बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ. वो पर्सन को खुद वो चीज़ का ओवरकम करना पड़ता है कि सोच के साथ नो मैटर व्हाट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए. आप इस चीज़ को कॉन्फिडेंस आपका उसी दिन बूस्टअप हो जाएगा जिस दिन आपका ये सोच हो जाएगी, ये ओपिनियन, ये माइंडसेट हो जाएगा. व्हाट मैक्सिमम कैन गो रॉन्ग, मैक्सिमम क्या गलत होगा. इफ़ आई टॉक अबाउट अभय, आंसर करना था क्वेश्चन का, ज़्यादा से ज़्यादा क्या गलत हो जाएगा. गलत बोल दोगे, ग्रामर की गलती हो जाएगी, कोई वर्ड गलत बोल दोगे, दैट्स इट. उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता. देर इज़ नो मॉनिटरी लॉस, देर इज़ नो लाइफ थ्रेटनिंग लॉस, ऐसा कुछ नहीं है. सो देयर फॉर कॉन्फिडेंस उसी दिन से आ जाता है कि कोई बात नहीं, लेट इट बी. कॉन्फिडेंस खुद लेके आओ. और उसके बाद जो मैंने अभी स्ट्रक्चरिंग बताई है, स्ट्रक्चरिंग मतलब हाउ टू स्ट्रक्चर योर स्पीच. उनको देखो पॉइंट्स को और फिर बोलो. येस, डिसबैलेंस इज ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू नर्वसनेस जो आपको होती है जब भी आपको बोलना हो. Nobody is a born speaker. कोई भी born speaker नहीं होता है. अभय and all the students in the class, what you should focus on is when you speak. That is why कोई भी चीज़ सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, AI सीखनी है, UPSC की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस एक ही थॉट पे आएगा. जहाँ पे भी नर्वसनेस हो, सिंपली आस्क योरसेल्फ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या गलत होगा. जब पता चल जाएगा कि ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम. कॉन्फिडेंस खुद लेके आओ. और उसके बाद ये जो ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस हो जाना, ये चीज़ें हो जानी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होंगी. एंड पैरेलली वी आर वर्किंग, बोथ वी आर वर्किंग टुगेदर, यू ऑल स्टूडेंट्स एंड मी ऑल्सो. हम काम कर रहे हैं कि हाँ, इंग्लिश कैसे बेटर करनी है, ग्रामर सीख रहे हैं, हम वर्ड सीख रहे हैं. तो वो इट्स अ स्लो जर्नी, दैट विल हैपन. ओके देविका, येस प्लीज. One quality that makes a person a good friend is loyalty, because it means showing honesty and full devotion towards the friendship and the friend. देविका, गिव वन एग्जाम्पल. आंसर कंप्लीट करो. Ma'am, the friendship of Krishna and Sudama. ओके, ऑल राइट, फाइन. आपने 2-3 लाइन्स बोली, दे वर फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट देविका, बी लिटिल मोर इलेबोरेटिव. थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाना है अपने आंसर को. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम 3 लाइन्स में आंसर को ख़त्म नहीं करेंगे, हम 6 लाइन्स में ख़त्म करेंगे. 2 लाइन्स फॉर पॉइंट 1, 2 for 2 and 2 for 3, राइट? Yes, ma'am. The friend is that makes one quality is honesty. The friends always truth tell and honesty, kindness. Okay. The example of good friends are Krishna and Sudama. Okay. Are the good friends. Okay. I find that they are good friends because आपको क्यों लगता है वो अच्छे फ्रेंड्स हैं? तुषार, complete this. Madam, actually, I booked this session for my daughter, and she's name is Mary. So Okay. sorry for that. I type my name Tushar. Okay. So actually, I booked this session for my daughter, No and problem. she is studying in 5th CBSE. Okay, great. Okay, no problem. So we have also a gem like this in the class, that is Devika, जिसका आंसर आपने अभी सुना है. No problem. The question says, if you could change one thing in your daily routine, what would it be? Okay, कोई भी ये नहीं बोलेगा पानी ज़्यादा पीना है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं बोलना. I am changing the question. If you could change one thing in your life, what it would be and why? कोई एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, क्या है और क्यों, कैसे आंसर करना है. कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं बोलेगा दैट आई वांट टू स्पीक. 1 मिनट का टाइम, टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन. आई विल गिव माई आंसर फर्स्ट, उसके बाद आप आंसर करोगे. नोबडी इज गोइंग टू टेक द आंसर दैट आई एम. यस सुयोग, मैं पॉइंट्स लिख के ही आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज आई फाइंड कि उससे आपको बेटर समझ में आएगा. ओके, सबसे पहले तो ये हम सबकी नोटबुक्स में कॉमन रहेगा, व्हाट, वन चेंज. अब ये जो व्हाट है उसके सामने लेट्स सपोज मैं ये लिख रही हूँ, स्लीपिंग अर्ली, स्लीपिंग
अर्ली. नाउ उसके बाद आइडेंटिफाई हो गया व्हाई इट इज नेसेसरी. उसके बाद क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी. उसके बाद मेरे दिमाग में आ रहा है एनर्जी लेवल के लिए, राइट. आई राइट सेकेंड पॉइंट एनर्जी लेवल. और इसकी एडवांटेज हो सकती है रिफ्रेशेस माइंड. मैं बेसिक एग्जांपल लेके बता रही हूँ. रिफ्रेशेस माइंड की मैंने एक एग्जांपल ले ली. और लेट्स सपोज ब्रेन रीवायर्स. थोड़ा सा मैं इसमें साइंस को लेके आई हूँ. सो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. 4 में ही मैंने बेनिफिट्स वो कर दिए. प्रिडिक्ट करने हैं उसके बेनिफिट्स लास्ट में कि ऐसा करने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा. ये उसके जनरल फ़ायदे हैं. मुझे लगता है मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. इस तरह से टॉपिक करते हैं. व्हाट के आगे स्लीपिंग अर्ली. आपको जो भी लगता है एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, वो ये भी हो सकता है रीडिंग बुक्स, एनीथिंग दैट यू फील लाइक. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस. मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ आपको. ओके. व्हाई इट इज़ नेसेसरी मैंने उसमें रिलेट किया एनर्जी लेवल, माइंड रिफ्रेशमेंट एंड ब्रेन रीवायरिंग, राइट. एंड लास्ट में प्रिडिक्ट करने हैं बेनिफिट जो ऐसा करने से होगा. तो मुझे लगता है मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. मैंने ये लिख दिया. द वन थिंग इन माई लाइफ दैट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इज टू स्लीप अर्ली एट नाइट. दिस चेंज is very necessary. I feel that sleeping late affects my energy levels for the next day. So therefore, I want to remove this habit. Moreover, mind refreshment as well as brain rewiring are the two important aspects that I have learned these days. Now, when we sleep, what happens? Our brain rewires. That means it gets filtered of what information is important, what information is not important. Moreover, neuro-linguistic programming that we call as NLP is done while we sleep. So overall what I can say is if I make this wonderful change in my life, this is going to enhance my productivity and I want to see improved productivity at my workplace as well as my personal aspect. That's it. Now who wants to speak? Who wants to speak? Volunteers, any student. I am the second one. So you want somebody else to speak first or you are talking me कि मेरे बाद आप बोलना चाहते हो. So let's start with Abhay. Abhay, all the best, go for it. I want to improve my communication and confidence. Something I feel shy or nervous while taking to another. This makes it hard to share my truth, makes friends or speak in public, and it so benefit of this change, some changes, it will be able to express myself clarity. I can make new friends and build good relationship, and I will feel more confident in studies, work and daily life. Give me a minute. Done. So अबे यही पॉइंट्स थे जो आप बोलना चाहते थे. Yes ma'am. Right? इस तरह से नोट टेकिंग होगी. इस तरह से यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर. फॉर एवरी स्टूडेंट आई एम गोइंग टू राइट द स्ट्रक्चर ताकि आपको आइडिया लग जाएगा. सबसे पहले दिस इज द आंसर टू व्हाट, कि किस चीज़ पे वर्क करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस और लैंग्वेज के ऊपर, ताकि पब्लिक स्पीकिंग बेटर हो सके. यू कैन इंटरेक्ट विद मोर पीपल, तो आपके अच्छे फ्रेंड्स बन पाएंगे. यू विल डेवलप अ गुड सोशल सर्कल. लास्टली अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दो. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? प्रिडिक्ट द बेनिफिट. क्या फायदा होगा, राइट? सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? लास्टली what I can say is this is going to improve my daily life as well as my workplace behavior. Yes ma'am. All right, good try, better try I would say. Okay, ma'am. So I think it's just like a hypothetical question. So if I were get a chance to change something in my life, then definitely I would have to change in my life. It would be prevent myself to use mobile phone. Okay, because I am very fond of and addicted by phone nowadays. Okay, so I know it's very harmful or disadvantage for my life, and it's also affect my eyes also. So I am not able to chunk my schedule in a proper timing. So that's why I would like to definitely to avoid mobile phones in my life. Thank you. What is the future benefit? Complete that.
Future, if I'm talking about the future benefits, so I can do my daily schedule in a proper way, in appropriate timing. So I can spend my time where I can be use my time. That's it. Are these the Sometimes I'm getting delay by phone. So okay, someone is calling, so I'm just okay, hang on, I'm coming. So this kind of things is happening in my daily life. So I'm always delay for mobile phone. Are these the pointers that you wanted to say? Yeah, of course. ओके सो देयरफॉर कौन से पॉइंटर्स हैं? अगर आपको ये बोलने से पहले पॉइंटर्स लेने होते तो आप कैसे लोगे? सबसे पहले प्रिवेंट फोन यूज, एडिक्शन, उसकी एडिक्शन के बारे में बोलना है, आईसाइट, शेड्यूल इज नॉट प्रॉपर, एंड दिस इज द क्लोजिंग. क्लोजिंग मतलब ये जो हमारा लास्ट पॉइंट था, फ्यूचर में कैसे वो आदत आपको हेल्प करेगी. दिस इज गोइंग टू इनहैंस माई प्रोडक्टिविटी एंड आई कैन इम्प्रूव माई हैबिट ऑफ डिलेइंग थिंग्स. ऑल राइट विज्ञान? Right, ma'am. Right. Yes, good evening. If I could change one thing in my life, I would like to manage my time better. I often waste time on important things, like watching, for example, Instagram, and this makes it hard to complete my responsibilities on time. Sometimes I feel rush and stressed because I think last minute. I feel very hectic and stressed. I change my better time management would help me stay organized and relax. When I change my life, I less stress, more productive, and better balance. Give me a minute. By improving my time management, I would feel more in control my day and reduce stress and better balance between work and day. Between work and personal life. Devika, Personal. coming to you. Now see, रणवीर, आई थिंक रणवीर आप ही बोल रहे हो, राइट? हाँ जी. आपके पॉइंटर्स इस तरह से बनेंगे. सबसे पहले व्हाट के आगे मैनेज टाइम, उसके बाद उसके अभी क्या हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा है इंस्टाग्राम पे, उसके कारण कॉम्प्रोमाइज हो रही है आपकी जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. फोर्थ इज always you are in rush because your time is wasted. Therefore whenever we do something in rush, our body becomes very hectic, we often get stressed. Okay, उसके बाद stay organized and relaxed, ये आपका concluding का fifth वाला part आ गया. That staying organized and relaxed is definitely going to enhance my productivity and improve my workplace balance as well as my personal time. Okay, तो यहाँ पे आप conclude करोगे इस चीज़ को, तो इस तरह से आपके pointers बनेंगे. Okay. Mom, one thing in my life that I would like to change is that my school timings should be less, so that when I come home, I can eat my lunch and then I can sleep. And when I get up, I can go to play. And when I come, I can also study. I also have time to study. Okay. So at last I would like to say that if my school timings are reduced, वो कैसे help करेंगे? Conclude करो इसको. If my school timings are reduced, I can be more good at academics and sports. Great. Nice answer. And this is even interesting answer that Devika wants to reduce her school timings. वो school timings को reduce करना चाहती है. Devika, आगे से आपने जब भी किसी टॉपिक के बारे में बोलना है, these are the kind of things that you are going to first jot down. That is. Clear है आपको? Okay, ma'am. Right? First of all, what? School timings. अभी स्कूल टाइमिंग्स का किस तरह से अफेक्ट हो रहा है कि आपका जो देयर इज अ रश ऑफ हैविंग लंच as well as you are not getting sufficient time to rest, to sleep. Okay, so
if the school timing is reduced, so you can even play more as well as become academically more intelligent by scoring good marks. So what I can say at last is, if the school timings are reduced, I can become a better student in academics as well as can improve myself in sports. Okay, all right. Okay, so इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो of your speaking from different perspectives.